Hello friends, welcome to my channel Tech Gyan by Ankit. T capital, G capital, A capital without space. और आज का हमारा टॉपिक है सबका हेडेक which is called recursion. बड़े परेशान हैं सब बच्चे और टेक्निकल पीपल कि सर ये होता क्या है रिकर्जन, कैसे बनाते हैं इसका प्रोग्राम। काश आ जाता तो एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाते, इंटरव्यू अगर क्वेश्चन पूछता तो हम यूं जवाब देते। आज की वीडियो के बाद आई चैलेंज यू, गारंटी से बोलता हूं आप यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो ऑफ द टॉपिक रिकर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ रिकर्जन, देन द यूज एंड द फाइनली व्हिच इज वी कॉल द प्रोग्राम ऑफ रिकर्जन। आज सीखेंगे प्रोग्रामिंग इन जावा यूजिंग अ टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड रिकर्जन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। व्हाट इज रिकर्जन? तो अगर आपका इंटरव्यूअर या आपके टीचर या एग्जाम में या आपके नॉलेज के लिए कोई पूछता है रिकर्जन होता क्या, तो लिख कर आना है रिकर्जन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स री एंड कर्जन। राइट, व्हाट इज री? इट्स अगेन, एंड व्हाट इज कर्जन? अकरेंस। व्हेन the same thing occur again and again, it is called recursion. Okay, so technically इसकी definition क्या हो सकती है? When the function call itself, जब function खुद को call करता है, when function call itself, it is called recursion. It's called recurrence, it's called recursion. बहुत अच्छी चीज है। एग्जाम में अगर आता है कि what is the advantage, see I have write double S here. Double S means again and again, but definition में single S, mind it. So basically when the function call itself, it's something called as a recursion. इसका यूज क्या है? इसका सबसे important यूज है reusability. It's the best use of recursion that the function reuse itself. When the function call itself, it is called the reusability of code. The same code is used again and again. Time भी बचता है और पैसा भी, right? Efficiency high हो जाती है कोड की। और इसका disadvantage क्या है? Disadvantage है इसका, it will go inside the infinitely calling. It will go infinitely calling if not handled properly. अगर इसको हैंडल नहीं किया गया तो इनफाइनाइट कॉल में चला जाएगा। तो तीन क्वेश्चन तो हमने यही तैयार कर लिए बिफोर द प्रोग्राम। नंबर वन, व्हाट इज रिकर्जन? आंसर राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्या लिखोगे? व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। दो वर्ड से बना है, री एंड अकरेंस। सेकंड क्वेश्चन, what is the advantage, what is the use of recursion? The advantage is code reusability. एक कोड को बार बार यूज करो, बार बार कौन लिखे यार, वैसे हम लोग इंडियन थोड़े से आलसी होते हैं, राइट? What is the disadvantage? The disadvantage is infinitely calling. एक फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, तो अगर हैंडल प्रॉपरली नहीं किया तो आपका कोड इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। Any doubt? If there is any doubt, please request and drop in the comment box. Next, let us understand the concept of recursion using program. Let us make a program of recursion using a technique which is we called as the function calling. Okay, so let us make a program to calculate the factorial of a number. Suppose the program is to calculate the factorial of a number using a technique called recursion, right? Before starting the code, let us understood कि factorial होता क्या है। जब पता होगा factorial क्या होता है, जब तो कोड लिखेंगे ना, पता की बात, right? So let us see what is factorial of a number. Suppose the number is 5 and you are calculating the factorial. The answer is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It is 120. 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1 is 24. So what is factorial? जिस नंबर का factorial निकालना है वहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए और 1 तक मल्टीप्लाई करते रहिए। जो आंसर आएगा तो वही क्या होगा हमारा फैक्टोरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना रिकर्जन का
yeah, to calculate the factorial using recursion. Let's see what is the code. Suppose we just understood the code. So the question is, write a program in Java to calculate the factorial of a number using recursion technique. The program is calculating the factorial of number, but the technique is recursion. ठीक कैसे करते हैं? Suppose you just make a function by the name. We just make a class first. Let's start with a scratch class. Class का नाम रखा हमने recursion. Why I put this class name? Because the program is about the recursion, but कोई hard and fast rule नहीं है कि आप भी इसका नाम recursion रखें. आपका जो मन करे वो नाम रखें class. But I just put the name. मेरे दोस्तों, मेरा नाम रखा गया इसमें recursion. Okay. Now I just make a function public static void main. अरे सर ये मेन से परेशान है. मेन फंक्शन वो फंक्शन है जहां से कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. स्टैटिक फंक्शन बनाया है, अभी तक तो कुछ करा ही नहीं. 2 ही लाइन लिखी है, क्लास का नाम और एक फंक्शन का नाम. राइट नाउ सपोज वी विल राइट SOPL. क्या प्रिंट करना है? रिकर RECUR और नंबर भेजा 5. बाप रे, ये क्या कोड लिख दिया सर? ये RECUR है क्या? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहां तक का कोड एक मेन फंक्शन बनाकर हमने छोड़ दिया और हमने कॉल करा एक फंक्शन को जिसका नाम है रिकर. तो लेट अस मेक अ फंक्शन बाय द नेम RECUR. सो यहां तक क्या स्टोरी हुई है? वी हैव जस्ट कॉल द फंक्शन बाय द नेम RECUR. तो हाउ वुड वी डू? तो लेट अस मेक अ फंक्शन स्टैटिक RECUR. आपका जो मन करे वो नाम रखना. मैंने तो नाम रखा है RECUR. और आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दें, क्लास का नाम है SS यूज कर रहा है. क्यों यूज कर रहा है? ताकि बता सकूं एक चीज बार बार कॉल हो रही है. यहाँ कॉल क्या हो रही है? रिकर्सन. एनी डाउट टिल हियर? इज देयर एनी डाउट? प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो ना यार. अभी के अभी हैंड टू हैंड क्लियर कर दूंगा. राइट. सो वी जस्ट टेक अ वेरिएबल int p. Now what will happen? See, this function is called, it will come here and the 5 comes in p. and it इसे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग. अच्छे जानते हो, अभी तो रिकर्जन में कुछ काम ही नहीं हुआ, अभी तो खाली फंक्शन कॉलिंग हुई है. यू कॉल द रिकर. p में कितना आ गया? 5. अब आपने क्या लिखा है? इफ n इक्वल 0. अगर n की वैल्यू कितनी है? 0. यहाँ p में आई है वैल्यू, तो n की जगह वी कैन चेंज इट एज p. अगर p कितना है हमारा? 0. थोड़ा सा मार कर भी फैल गया क्योंकि ये भी डर रहा है किससे? रिकर्जन से. अगर p 0 है तो क्या रिटर्न कर दे? रिटर्न 1. इट विल रिटर्न 1. अगर p की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न करेगा? 1. अदरवाइज इट विल गो इन द एल्स पार्ट. What will it do? It will return. What it will return? P multiplied by. इससे multiply? Recur. RECUR. P minus 1. यहाँ हो गया कमाल. ये क्या कोड लिख दिया अंकित सर ने? ये क्या लिख दिया टेक ज्ञान बाय अंकित ने? Return P into recur P minus 1. This is recurrence. Why? See, this recur now call itself. यहाँ फंक्शन खुद को कॉल करेगा. इट इज कॉल्ड रिकरेंस. नाउ सी हाउ इट वर्क्स. कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कैसे होने वाला है? जावा में जब ये कोड बनाया जाएगा, रन किया जाएगा, तो स्टार्टिंग होगी मेन फंक्शन से. ये रहा मेन. क्या लिखा है? रिकर को कॉल कर रहा है. वैल्यू क्या भेजी है? 5. फटाफट p में कितना आ गया? 5. क्या p 0 है? नहीं. 0 पे क्या आएगा? 1 आएगा. कहाँ जाएगा? एल्स पार्ट में. रिटर्न p into recur p minus 1. थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं. लेट अस ड्राई रन इट. थोड़ा सा इसको ड्राई रन करके देखते हैं. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. राइट. सो हियर वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई रनिंग. राइट. लेट अस सी द ड्राई रनिंग ऑफ द कोड. राइट. समझ में अभी आएगा ड्राई रन करके. देखिएगा जरूर. p की वैल्यू कितनी है अभी?
5 है पी की वैल्यू, कहां से आई है, यहां से आई है 5। एस में 5 मल्टीप्लाइड बाय, इट बिकम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय रिकर, क्या लिखा है p माइनस 1, 5 माइनस 1 इज हाउ मच 4। अरे बाप रे, इसने रिकर को भेज दी कितनी 4 वैल्यू, p कितना हो गया, p अब हो गया हमारे पास 4। वाओ, क्या p 0 है, नहीं, इट विल कम इन द एल्स पार्ट। रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, p मल्टीप्लाइड बाय रिकर p माइनस 1। सो p में 5 पहले से ही था, अब कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू रिकर n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 इज 3। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, वैल्यू कम हो गई, फिर से जाएगा इफ में, p 0 है नहीं, फिर से इस पार्ट में आएगा, इट विल रिटर्न 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू रिकर n माइनस 1। अरे बाप रे, कितना हो गया 2, राइट। इट विल अगेन गो इनसाइड द p अभी भी 0 नहीं हुआ, p कितना है 2, अभी कितना, अभी p कितना है हमारा 2, फिर दोबारा कोड चलेगा, इट विल लर्न फॉर p इज इक्वल्स टू 2, ये किसके लिए था, p इज इक्वल टू 3 के लिए था। ओके, आई एम सर्कलिंग इट सो देयर इज नो कंफ्यूजन। ये p इक्वल टू 5 के लिए था, ये p इक्वल टू 4 के लिए, ये p इक्वल टू 3 के लिए, अब p इज इक्वल टू 2 के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू रिकर कितना 2 माइनस 1 1। नाउ p में कितना गया, रिकर देखो, रिकर 1, अब 1 गया, p कितना हो गया 1, नाउ द p बिकम्स 1। नाउ अभी भी p 0, इफ कब से p 0 होगा, अगेन इट कम्स टुवर्ड्स द एल्स पार्ट, इट विल बिकम 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2, इधर 2 ही था ना हमारा, डिस्कस हो गया, गायब हो गया, रिकरेंस है, राइट, इंटू 1। नाउ इट विल गो रिकर 1 माइनस 1 हाउ मच 0। अब 0 जाएगा, p 0 पे कितना आंसर आएगा 1 ही आंसर आएगा, तो इंटू 1 भी हो जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा 120। तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा वापस यहाँ पर 120 एंड इट विल गिव द आंसर एज 120 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोड कि रिकर को कॉल करा, यहाँ पर कॉल करा, ये रिकर्जन नहीं है क्योंकि यहाँ मेन के अंदर हम रिकर को कॉल कर रहे हैं, बट जब रिकर पे कोड यहाँ से कॉल हुआ दोबारा, ये साइकिल बार बार चली, सो ये आपकी रिकर्जन है। व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड रिकर्जन। Any doubt? Now you can frame the same program. What you can do? You can take this value from the user. आप ये वैल्यू किससे ले सकते हो, यूजर से ले सकते हो। क्या चेंज करना पड़ेगा, बस यहाँ पे वैल्यू को इनपुट कराना होगा। You can input the value here. You can ask the user to input the value and pass it here, and then you can get the same output. The output depends upon the value given by the user. I am sure ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक और बात, जो टॉपिक आपको कंप्यूटर में परेशान कर रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को डालें सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट टॉपिक वेरी वेल। एक क्वेश्चन आपको मैं देकर जा रहा हूं, डाउट होगा तो जरूर समझाऊंगा, कमेंट में पूछिएगा। यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द Fibonacci series using recursion technique। सोचिए, डाउट हो कमेंट में ड्रॉप कीजिए, प्रोग्राम नहीं बनेगा, मैं ही कराऊंगा। बट आज का क्वेश्चन है, 10 ज्ञान में का क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिंट अ Fibonacci series यूजिंग रिकर्जन टेक्निक। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज डाउट्स पूछें, ड्रॉप द डाउट्स ऑन द कमेंट बॉक्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द video. Thank you.